Good morning, students. Today, myself Sonika Bhatia, on behalf of whole Commerce Department, I welcome you all in the new journey of commerce. Today, we will discuss the subject business study, and in this subject, the first chapter is nature and purpose of business. Nature and purpose of business. I have highlighted some key points that is to be discussed later on in the chapter. First is history and trade. History of trade and commerce. Second is human activities, that is categorized into two parts. One is economic activities, another is non-economic activities. In economic activities there are three kinds of activities: business, profession and employment. Then later on we will discuss features of business, objectives of business and business risk that is prevalent in the business. Okay, now moving further, we will discuss the whole analytical table that we have to study in the whole chapter as it is visible to all of you. Okay, industry and commerce. Business is divided into two parts. One is industry and commerce. इंडस्ट्री में हमारे पास तीन तरह की इंडस्ट्री है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. राइट, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. Categorized into two parts. One is genetic, another is extractive. Later on I have discussed it in detail. सेकेंडरी में हमारे पास आ जाती हैं दो कैटेगरी की इंडस्ट्री: कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंडरी में ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए रॉ मटेरियल हमारे पास प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट होता है. राइट, बाय गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इज टू बी यूज इन सेकेंडरी. कैटेगराइज इन टू पार्ट्स. वन इज कंस्ट्रक्टिव, अनदर इज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा एनालिटिकल, हम गुड्स को अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स को एनालाइज करते हैं. राइट, सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली, दैट ऑल कैटेगरी कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग. राइट, एंड द थर्ड वन इज टर्शरी. टर्शरी में हमारे पास टर्शरी जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करती है. राइट, टर्शरी इंडस्ट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी को भी सपोर्ट करती है, उसके अलावा ट्रेड में भी हेल्प करती है. इसको सपोर्टिव इंडस्ट्री कहा जाता है. राइट, लेटर ऑन नाउ द नेक्स्ट इज कॉमर्स. कॉमर्स में हमारे पास दो पार्ट्स हैं: ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रेड में हमारे पास है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रेड का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना. बट विदाउट हेल्प ऑफ दीज ऑक्सिलरीज कैन वी डू बाइंग एंड सेलिंग? Can it be possible only buying and selling without help of these? We need to transport goods from one place to another. We need to make payments online as well as some other mode. For that, we also need in some business. We also need financing activities, right? For storage of goods, we need warehousing facilities. To make sure that goods are safe in warehouse or in showroom, we need insurance of those goods as well. For communicating with another parties of business, we need communication activities as well. How people will get to know about our products? We need to advertise, we need to inform, so there is need of advertising as well. Trade, auxiliaries to trade. I hope it is clear. Later on I have discussed it in detail. I just want to clear you this whole analytical table that is discussed in the whole chapter. Right, it is a whole summary of the chapter. ट्रेड का मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर दिया ना. ट्रेड इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इंटरनल ट्रेड, अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में है रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड. राइट, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड में आ जाता है. एक्सटर्नल ट्रेड में तीन पार्ट्स हैं: import, you know very well, purchasing from another country, selling to another country. Entreport, purchasing from one country and selling it to another country. For example, if we are purchasing goods from Australia and selling these goods to Malaysia, right, this is called entreport trade. I hope it is clear. Now moving toward next, let's discuss meaning of business here. The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. Busy, right? Business refers to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit. Profit earn करने के लिए regularly हम जिस occupation में engaged हैं, that is called business. Now with the help of various features, the meaning of business will be very clear.
right? First of all, it is an economic activity as it is undertaken with the object of earning money or livelihood, or it is not undertaken merely out of charity, love, affection and sympathy. हम बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से करते हैं, राइट, अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए, नोट फॉर अफेक्शन और एनी काइंड ऑफ सिंपैथी, राइट. सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमने गुड्स को जो बिजनेस में हमने जो जिस चीज़ का हमने बिजनेस करना है, या तो हम गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं या उनको अलग अलग रिसोर्सेज से प्रोक्यूर कर रहे हैं फॉर मेकिंग इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर. एज गुड्स मस्ट बी अवेलेबल विद बिजनेस आइदर थ्रू प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट. हमने पब्लिक को जो गुड्स अवेल कराने हैं आइदर थ्रू प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू द पीपल फॉर कंजम्पशन. Also, business may provide services like banking and insurance, etc. Right? Because I have mentioned here services. तो goods and services. Services में आपके पास banking and insurance आपके services में आ जाएगा. Right? Sale or exchange of goods and services. Sale or exchange of goods and services. हमने business में goods and services को sale करना है, provide करना है. A business activity will be considered only इफ़ इट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज. वो तभी बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर होगी उसमें सेल हो रही है. अगर हम गुड्स अपने लिए कंज्यूम करने के लिए परचेज कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. तो बिजनेस में सेल और एक्सचेंज तो नेसेसिटी है, तो बिजनेस एक्टिविटी तभी कंसीडर होगी जब उसमें सेल और एक्सचेंज होगा. सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो एक्टिविटी होगी वो बिजनेस कंसीडर नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे वही गुड्स को डील कर रहे हैं. रेगुलरली इन डीलिंग इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. वन सिंगल और आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. हमने एक ही बार कोई चीज़ खरीदी या बेची है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी. हम उसको रेगुलरली उसी ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं. मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया, अगर हम अपनी कोई पुरानी कार सेल करते हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं होगी, बिकॉज ही डज नॉट एंगेज इन द प्रोफेशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड कार्स टू अर्न हिज लिवलीहुड. The transaction which we are dealing on the daily basis, regular basis, only those transaction will constitute business. वो ट्रांजेक्शन जिसके साथ हम जिसमें हम एंगेज हैं उसी को बार बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वही हमारा बिजनेस कंसीडर होगा, राइट. हम अपना कोई पुराना घर बेच रहे हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस एक्टिविटी में एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन या सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं आती है. रेगुलर उसी ट्रांजैक्शंस में हम डील कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तभी वो बिजनेस कंसीडर होता है. नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस. एवरी बिजनेस सीक्स टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. बिजनेस ने सर्वाइव करना है, उसके पास प्रॉफिट होगा तभी. आगे फर्दर उसने अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है. नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. सो दैट इज़ वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट. कॉस्ट को रिड्यूस करके, सेल्स को मैक्सिमाइज करके वो अपने प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए सारे पॉसिबल एफर्ट्स लगाता है. Next is uncertainty of return. Since business operate in a dynamic environment. Dynamic environment का मतलब क्या है? Changing environment. As due to COVID-19, right? Dynamic environment है. It can be changed anytime, right? Business एक ऐसे situation में, एक ऐसे environment में operate कर रहा है. Risk always prevalent. Risk is always prevalent. Risk is inherent in every business. हर business में risk है. If it is not possible to असर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग्स ऑफ बिजनेस इन गिवन टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कितनी क्या कैसे अर्निंग करेंगे, इसको एक्चुअली एस्टिमेट करना मुश्किल है. तो क्या किस टाइम पे कितनी रिटर्न होगी, हमेशा एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं लग पाती. वो सर्टन नहीं है, वो श्योर नहीं है. सिंस अ बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, रिस्क तो रहता ही है उसमें. तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू असर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग्स of a business in a given situation, in a given time. We cannot ascertain the amount of profit. For the next topic, see the next video. Thank you.